Hello dear students, myself Rajesh Kumar, and today we are going to start the last topic of the sector of Indian economy, chapter number 2 of economics for the class 10th. Last two lecture we have discussed what is the characteristics of Indian economy, then which are the main important types of the sectors of Indian economy. Then we have discussed the primary sector, secondary sector, tertiary sector, and other names of primary sector. That's why the primary sector is called as agriculture sector, service sector, why it is called as the tertiary or the service sector, and why the secondary sector is called as the industrial sector. Then we have taken some example from this NCERT book and also completed these questions, and then we have compared the three sectors and what is the GDP, what is the intermediate goods, and what are the final goods. Already we have discussed in the last two lectures. So if you want to see those videos, so just you can see this video on my playlist with the name of the NCERT 10th class economics. Okay, then historical changes we have already done, then primary sector and tertiary sector in India and in their contribution in our GDP and employment shares. Already we have discussed this topic with the important slides. Then what are the unemployment, what is the employment, what is disguised unemployment. We have discussed all the types of the unemployment like underemployment, clear seasonal unemployment. Then we have discussed the last important topic, that is how to create more employment in rural and urban areas. So very important question for board exam point of view. Now today we are taking the next important part of the this chapter, that is the last topic of this chapter, that is division of sector as organized and unorganized sector. So dear students, already we have discussed primary sector, secondary sector and tertiary sector. So that is based on the economy. Now we are going to discuss the that is the people are employed. So on the basis of employment, people the sectors of Indian economy, that is divided into two main parts. The first one organized sector and second one is the unorganized sector. Clear? So dear student, just see this slide. So in this slide the sectors of Indian economy is divided into three main parts. First one economic activity, second one employment condition where the people employed, and third one is the ownership. तो economic activities के basis के ऊपर primary sector, secondary sector, tertiary sector we have already done. Now we are doing the employment condition where the people employed, so organized sector and unorganized sector. After this topic we will take the last topic on the basis of the ownership. So ownership के base के ऊपर private, public sector and private sector. So these are the major classification or major sectors of the Indian economy on the basis of economic activities, on the basis of employment condition and on the basis of ownership. Okay students, so these are the two main sectors, organized sector and unorganized sector, on the basis of people employed or employment condition. So here are the two main important examples. So firstly I am going to read out the Kanta. So Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 to 5:30 p.m. She gets her salary regularly and at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rule laid down by the government. She also gets medical and other allowance. Kanta does not go to office on Sunday. This is a paid leave for her. When she joined work, she was given an appointment letter stating all terms and condition of work. So means Kanta जो है that is working in a, that is under the government sector where the government rules have been followed by the companies, and she also there was in the Kanta office a fixed working time period is there, that is the important point. Then second, she gets regular salary at the end of every month, point to be noted. Then next one, in addition to salary she gets provident fund, that is called as the PF of our employee, and then laid down by the government, and also she gets medical leaves and other allowance like traveling allowance, demand allowance. So these are the other allowance. Then she does not go to office on Sunday, means Sunday is the paid leave. Clear? Then when she joined the work, she also get an appointment letter. So these are the conditions of the Kanta. So Kanta is similarly engaged with the organized sector where the things are properly managed by the government. All the rules and regulation which are managed by the government, they are executed in the Kanta's office.
So Kanta's office or her job and his offices that executed all the things properly which are managed by the government or which are the main criteria of the government. Then next example is the Kamal. So what does with the case with the Kamal? Kamal is the Kanta's neighbor. He is a daily wage labor. तो डेली वेज लेबर मीन्स जिनको डेली वेज के ऊपर, अगर संडे को काम नहीं किया तो संडे को जॉब, संडे को मनी या वेजेस नहीं मिलेगी. इन नियर बाय ग्रोसरी शॉप, वो ग्रोसरी शॉप में काम करता है. ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM इन द इवनिंग. मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही नहीं है. 7:30 पे जा रहा है, 8 PM जो है वो इवनिंग को घर पे आ रहा है. नियर अबाउट 12 मोर देन 12 आवर्स वर्किंग टाइम हो गया. देन ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस. मतलब उसको कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, डिमांड अलाउंस नहीं है. देन ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क. मतलब जिस दिन वो काम पे नहीं जा रहा उस दिन भी उसको वेज नहीं मिल रही है. क्लियर. ही हैज़ देयर फॉर नो लीव्स पेड और पेड हॉलीडे. ना तो नो कोई लीव्स है ना कोई पेड हॉलीडे है. nor was given any formal letter saying that he has been employed in the shops. He can ask to leave anytime his employee. मतलब उसको ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ना कोई अलाउंस है, ना संडे की छुट्टी है, कोई पेड लीव्स नहीं है, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं है. सो मीन्स कमल the engage with the sector that is called as the unorganized sector. Clear. I hope all of you understand this difference between the organized sector and the unorganized sector. Clear. So now organized sector and unorganized sector में difference क्या है? So first one, in the organized sector they have a fixed number of hours every day. Means working hour क्या होंगे? फिक्स होंगे. दे गेट अ वीकली ऑफ, उनको वीकली ऑफ मिलेगा. एंड एक्स्ट्रा टाइम इफ़ दे डन, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम के साथ क्या मिलेगी? एक्स्ट्रा पेड लीव्स मिल जाएगी या वेजेस मिल जाएंगी. क्लियर है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देर इज़ नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, कोई नहीं होगा. दे वर्क लॉन्गर देन दोज इन द ऑर्गेनाइज वे. मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा काम करेंगे, उनसे ज़्यादा. मैनी टाइम्स वीकली ऑफ मे नॉट गिवन ड्यू टू अर्जेंट वर्क. उनको वीकली ऑफ नहीं होगा, कोई पेड लीव्स नहीं होगी. सो दिस वन इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. देन सेकंड वन, दे गेट सैलरी ऑन द मंथली बेसिस. मंथली बेसिस के ऊपर उनको सैलरी मिलेगी. फिक्स्ड डे होगा सैलरी का. एंड देयर इज़ नो डिडक्शन इन द सैलरी फॉर द वीकली ऑफ. अगर वो संडे को छुट्टी कर रहे हैं तो उनकी कोई सैलरी नहीं कटेगी. एब्सेंस फ्रॉम वर्क कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट लीव ड्यू टू एन एम्प्लॉय. अगर वो कहीं पे लीव लेते हैं तो उनकी जैसे मेडिकल लीव है या कैजुअल लीव मिलती हैं तो उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं. क्लियर. मीन्स नो डिडक्शन इन द सैलरी. बट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर सैलरी इज पेड ऑन डेली बेस. मतलब जितने दिन काम करेंगे उतने दिन सैलरी मिलेगी. सैलरी इज़ नॉट पेड फॉर एब्सेंटीज. तो वीकली चाहे ऑफ रहे उनको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी. दैट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. उसके बाद एन अपॉइंटमेंट लेटर इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है. बट नो अपॉइंटमेंट लेटर इज़ गिवन in the unorganized sector when they join the job or employment. Clear. No. And in the organized sector there is a job security, while in the unorganized sector there is no job security. Clear. उसके बाद the employees get benefits like provident fund, gratuity and medical benefits. ग्रेचुटी होती है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्कर ने 10 साल काम किया. क्लियर. 10 साल काम किया किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी, फॉर एग्जांपल इफ़ दैट इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर उसको मिनिमम 6 मंथ या 1 ईयर की जो वेजेस हैं या जो सैलरी है वो उसको मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ. लाइक उन्होंने 5 साल का अगर टाइम पीरियड रखा है तो 5 साल के टाइम पीरियड के बाद उनको वो ग्रेचुटी मिलेगी. क्लियर. मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. स्टूडेंट उनके चाइल्ड की जो एजुकेशन है वो फ्री हो जाती है. सो दिस टाइप्स ऑफ द अलाउंस. बट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देर इज़ नो एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट. क्लियर. देन उसके बाद वर्कर इन अ लार्ज फैक्ट्री. लार्ज फैक्ट्री के भी वर्कर हो सकते हैं. क्लर्क इन द ऑफिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स. ठीक है. गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है. मीन्स दो सेक्टर विच फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर. बट इसमें क्या होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली वेज लेबर होगा, वर्कर होगा, हेल्पर होगा किसी शॉप में, हैंडलूम्स, वीवर होगा, वर्किंग इन एनी टाइप ऑफ इन एनी काइंड ऑफ विलेज और टाउन. So these are the main difference between the organized and unorganized sector. Clear. उसके बाद एक थोड़ा सा और डीप में नज़र डालते हैं. द फर्स्ट वन, वर्कर हैव जॉब सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाइल अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी. वर्कर गेट्स रेगुलर मंथली सैलरी
वर्कर गेट्स डेली वेजेस, रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड हियर, मीन्स जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी वो फॉलो होंगे, बट रूल एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड हियर. वर्कर गेट्स बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट, बट वर्कर डू नॉट गेट any such benefit. Working hour are fixed here, but working are not fixed here. Sometimes workers work for 10 to 12 hours straight. It is called organized sector because it has some formal processes and procedure. Clear? Formal process or procedure होंगे, they are not formal, there are not formal processes and procedure. Working conditions are favorable in organized sector, while in unorganized sector working condition is not favorable. Okay, क्लियर. उसके बाद थोड़ा सा और डीप इसके ऊपर स्टडी करते हैं. वर्कर्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन. क्लियर. अगला टॉपिक है ये कि वाई वर्कर्स नीड, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब कंसंट्रेट करने की जरूरत है दैट इज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, मेडिकल लीव्स नहीं है, वर्किंग उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ की, एजुकेशन की. क्लियर. तो उनको क्या प्रोटेक्शन चाहिए. क्लियर. सो दे हैव, उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लो सैलरीज है, देयर फोर दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड. और बेसिक नीड में आती है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. क्लियर. ये तीन चीज़ें, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. उसके बाद दे आर एक्सप्लॉइटेड, उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है. एम्प्लॉयमेंट इज देयर बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. एम्प्लॉयमेंट है बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. दे कैन बी थ्रोन आउट एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न. उनको कभी भी उस जॉब से निकाला जा सकता है. अदर देन सैलरी विच इज़ वेरी लो. एक तो सैलरी बहुत लो है, दे डोंट गेट एनी अदर बेनिफिट्स. एक तो सैलरी लो है और उनको ऊपर से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता. दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मीन सोसाइटी में भी इनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है इनका. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज बोथ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. मतलब इनकी प्रोटेक्शन करना जरूरी है. ओके. So this is the organized and unorganized sector which we have deeply discussed in the last two slides. What is the organized and what is the unorganized sector. So here are some questions, easy question. And then most important topic, how to protect workers in an unorganized sector. मतलब अब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे कई तरह की फैसिलिटी नहीं है लोगों को. जो वर्कर हैं उनके लिए फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल लीव्स नहीं है, सैलरी प्रॉपर नहीं है, लो वेजेस हैं, नो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, पीएफ की फैसिलिटी नहीं है, ग्रेचुटी की फैसिलिटी नहीं है, पेंशन की फैसिलिटी नहीं है. क्लियर. सो व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट डू. फर्स्ट वन, गवर्नमेंट के लिए देखिए पॉइंट आप लिखते चलेंगे, आई कैन सिंपली डिक्टेट. सो बेटा फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड. पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन. क्लियर. पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए. सेकंड वन, इनकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकी क्या बने, इनकी यूनिटी, इनकी यूनियन बने, इनकी फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब यूनियन की फॉर्मेशन से क्या होगा, अगर कोई पर्सन किसी की डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, सो दे कैन रिपोर्ट टू देयर यूनियन एंड द लीडर ऑफ द यूनियन विल पुट देयर मैटर अप अमंग द दैट पर्टिकुलर companies or industries or higher authority. Clear. Then properly, and that case also put to be the under the different types of the judiciary system. Clear. So this one is the second. Third one, government should provide more working days and also provide the development in the field of industry. Clear. Means more and more industries should be installed. That's why the people get more wages, more employment. Clear. Then third one, no sorry, fourth one, government should provide them medical loans. Clear. मेडिकल लोन्स प्रॉपर होने चाहिए. प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को विद द हेल्प ऑफ दोज इंडस्ट्रियल units. Then medical leaves should be provided, and government must be discuss about their salaries. If their salaries is very much low, then government should have to be enhance that salaries with the cooperating the industrial unit. Clear. And then also provide them fixed working hour होने चाहिए.
क्लियर, फिक्स वर्किंग आवर होने चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, उसमें डूज एंड डोंट होने चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट को क्या फैसिलिटी होंगी, उनको बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लाइक क्लॉथिंग की फैसिलिटी हो, शेल्टर की फैसिलिटी हो, फूड की फैसिलिटी हो, एजुकेशन की फैसिलिटी हो, हेल्थ की फैसिलिटी हो। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी जो हैं वो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलनी चाहिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच कम्स अंडर दिस पॉइंट, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऑनरशिप मीन्स जो मालिक होते हैं। अब मालिक के बेस के ऊपर दो कैटेगरी हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मीन्स पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आता है, और प्राइवेट मीन्स कोई सी इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, उसको हम प्राइवेट पर्सन बोलेंगे। लाइक रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर की है। क्लियर है। बट गवर्नमेंट की इंडियन रेलवे, आर्मी, ये सारे के सारे सेक्टर जितने भी है दैट कम्स अंडर द BSNL। अब BSNL भी प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो रही है अब, बट अभी प्रेजेंटली दैट इट कम्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर। उसके बाद जितने भी हैं लाइक आपका उसके बाद आपके BSNL के बाद लाइक आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेलवेज, मिलिट्री सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, सो ऑल दीज कम्स अंडर द government sector। Clear. So now move toward the what is the difference between the government sector and private sector। सो बेटा इस स्लाइड में अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में। देखिए प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड जॉब्स हैं, पहला तो ये है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में यूनिट्स बहुत हैं इंडस्ट्री की, तो उसमें अनलिमिटेड जॉब्स हैं। लिमिटेड जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है, अनसिक्योर जॉब्स, साथ में अनसिक्योर जॉब्स भी हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स हैं। अनलिमिटेड वर्क्स एंड डे, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है जॉब का, सुबह से 8 से 9 भी हो सकता है, 7 से 5 भी हो सकता है, बट इन द पब्लिक सेक्टर लिमिटेड टाइम्स एंड डे, जैसे संडे का ऑफ होगा, बट जरूरी नहीं है प्राइवेट में संडे भी ऑफ होगा। क्लियर। उसके बाद अनलिमिटेड एज ऑफ सर्विस, आप मान लो जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है तब तक आप सर्विस कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर। बट पब्लिक सेक्टर में लिमिटेड एज ऑफ सर्विसेज मीन्स किसी सेक्टर में 58 के बाद रिटायरमेंट है, किसी सेक्टर में 60 के बाद, किसी सेक्टर में 62 के बाद। क्लियर। सो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद ओनली फॉर अर्न प्रॉफिट। अब प्राइवेट सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस यूनिट का, उस पर्सनस की, इंडस्ट्रीज का, दैट ओनली टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। बट यहाँ पे क्या है पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, सोशल वेलफेयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर। उसका नो वियर फॉर मिस्टेक मीन्स मिस्टेक के लिए कोई भी वहाँ पे क्या है, मतलब कोई माफ़ी नहीं है किसी के लिए, बट नॉट मैंशनड, इसका वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में कोई प्रॉपर रूल्स ही नहीं है इसके बारे में कि वहाँ पे अगर मिस्टेक होगी नो प्रॉब्लम, इम्प्रूवमेंट, डू द इम्प्रूवमेंट। अब पब्लिक सेक्टर इन विच गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट हैव टोटली participated and that sector comes under the government sector, that is called as the public sector। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं इंडियन रेलवे, लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी, क्लियर इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये सारी की सारी स्टील जितनी भी मिनरल्स की इंडस्ट्री हैं सारी की सारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आपकी रिलायंस होगी, जियो होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मारुति सुजुकी, ये सारी की सारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में वर्किंग आवर फिक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। पब्लिक सेक्टर में लोगों के पास क्या है, मेडिकल अलाउंस है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, दीज थिंग्स, बट दीज आर नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर। सो मीन्स पब्लिक सेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर को क्या बोल सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। ओके। अब बेटा सेक्टर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है दैट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर सो जिसमें कौन होगा, इंडिविजुअल होगा, कंपनीज होंगी। क्लियर। तो ये सारे के सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमने डिस्कशन की, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्लियर। So this is the whole discussion of this chapter. So I hope all of you understand this chapter properly, and now we are talking about the question bank of this chapter. So main question, what is the difference between public and private sector, and classify the sector on the basis of ownership। तो दो आ जाएंगे पब्लिक एंड प्राइवेट। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू वी प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़ इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देन हाउ क्लासीफाई द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, राइट टू वर्क के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मनरेगा की। क्लियर।
उसके बाद हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, तो इसके ऊपर अर्बन एरिया में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हाउ टू कंजर्वेट एनवायरनमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये सारे के सारे क्या हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? so this is by these 3 lecture we have completed this chapter, and if you want to see all the 3 videos related to this chapter, you can see my playlist. Clear? On the name of the NCERT 10th class economics. Okay, thank you beta.